Good morning, grade 5. I hope you people are doing good. So, it's science class going to be started, and I hope you people have understand your previous topic. The previous one which we read was what is condensation. आपको कंडेंसेशन के बारे में बताया था कि हमें उसका जो लेवल है वो क्या होता है और किस जगह पर उसका लेवल कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जा चुकी हैं. Now we have to start from the page number 53. You people need to get your pages ready so that we could start reading. Here we go. यहाँ आप देखें ग्रेड 5. यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं. एक आपको कैन नज़र आ रहा है यहाँ पे इसके ऊपर जो हैं वो ड्रॉपलेट्स हैं. एंड यू नो आई टोल्ड यू कि वो ड्रॉपलेट्स कैसे आए हैं. आप किसी चीज़ को फ्रीज़ करते हो या फ्रिज में रखते हो या किसी कंटेनर के अंदर बर्फ़ आइस क्यूब्स जो है वो डालते हो, तो आप थोड़ी देर के बाद देखोगे कि उसकी जो सरफेस होती है वहाँ पर आपको ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं. ठीक है, दीज आर वाटर ड्यू. रात जब बहुत रात गुजर जाती है, ठंडी होती है, गुजर जाती है, और सुबह जैसे ही उसके ऊपर हीट पड़ती है तो ये ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हमें उनके ऊपर ग्रास के ऊपर, फ्लावर्स पे या प्लांट्स के ऊपर दिखाई देते हैं. तो आपको इसका लेवल बताया गया था कंडेंसेशन का कि जहाँ पे ऑब्वियसली हीट ज़्यादा होती है, इसका जो लेवल है वो वहाँ पर हाई हो जाता है. डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द outer surface of a cold can? Water vapor from the surrounding air comes into contact with the cold outer surface of the can, loses heat quickly and condenses into water droplets. ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. The water droplets you see on the blades of grass in the early morning are called dew. Dew is formed when water vapor from the surrounding air comes into contact with the cooler surface of the grass, loses heat quickly and condenses into water droplets. नीचे आप आ जाएं ग्रीन ब्लॉक में. ये यहाँ भी वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं. ड्यूरिंग विंटर when the surrounding air is very cold, we can see clouds forming in front of our mouths as we breathe out of speak or speak. These clouds are made up of tiny water droplets. When we breathe out, warm water vapor from our mouth comes into contact with the cooler surrounding air. The water vapor loses heat quickly and condenses into water droplets that we see as the clouds. The next one is clouds in the sky are also formed by condensation. They are made up of many tiny water droplets and cover almost half of the Earth's surface. You will learn more about the role of clouds in the water cycle on the next page. यानी हमें उस पर पता चलेगा कि वाटर साइकिल जो है उसमें कि किस तरह से ड्रॉपलेट्स बनते हैं या किस तरह से वाटर वेपर का प्रोसेस होता है और क्लाउड्स जो है वो फॉर्म होते हैं. यहाँ पे देखिए डिस्कवर मोर राइट साइड पे यू कैन सी ओवर हेयर डिस्कवर मोर. अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. क्लाउड सीडिंग is a process used to cause rainfall. This ensures that dry areas get adequate rainfall so that plants can grow and living things can survive. Cloud seeding is usually done by using airplanes to fly into clouds and release dry ice or a chemical called silver iodide. Another method is by using smoke machines on the ground to release silver iodide particles into air. This causes chemical reactions to take place which eventually leads to rainfall. ठीक है, आर्टिफिशियल रेन के बारे में बताया गया है कि वो क्या होती है. सीडिंग जो है, क्लाउड सीडिंग किसको कहते हैं. तो क्लाउड सीडिंग क्या है कि आर्टिफिशियल तरीके से किस तरह से
बारिश बरसाई जाती है, इसके बारे में वो सब कुछ आपको बताया गया है. सो नाउ वी नीड टू कम ऑन द नेक्स्ट पेज. टर्न योर पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 54. Here we go. What is the water cycle? अब हमें यहाँ पता चलेगा कि water cycle क्या है. All living things need fresh water to stay alive. The water cycle ensures that there is a continuous supply of fresh water for all living things. The water cycle refers to the continuous movement of water from the earth's surface up to the sky and back down to earth again. यहाँ आप प्रोसेसेस चेक करो क्या हैं. Bodies of water such as oceans, rivers or lakes are heated by the sun's energy. This heat causes water to evaporate into water vapor. Living things such as humans, animals and plants also give off water vapors. Number 2 पे है as hot air rises, the warm water vapor will start to rise together with it. Now come on number 3 on the page number 55. Warm water vapor is cooled by the surrounding air, which has a lower temperature. This causes the water vapor to condense into water droplets. These many water droplets eventually come together to form clouds. Number 4, as more water vapor condenses, the water droplets eventually become larger and heavier before their weight cannot be supported in the clouds. The water droplets finally fall back to the earth's surface as rain. कि जब वो भारी हो जाते हैं तो clouds उनको ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते हैं इतने भारी ड्रॉपलेट्स को, तो इवेंचुअली क्या होता है कि बारिश होना शुरू हो जाती है. नंबर 5, द रेन वाटर इज कलेक्टेड इन ओशंस. रेन वाटर दोबारा जो है वो ओशंस में आ जाता है. रिवर्स, लेक्स एंड इवन अंडरग्राउंड वेयर द वाटर साइकिल विल बिगिन ऑल ओवर अगेन. यानी नीचे ज़मीन से ही ये पानी ड्रॉपलेट्स की वाटर वाइपर में चेंज होता है और फिर ऊपर इकट्ठा होता है बादलों में, और फिर जब वो ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाते हैं तो वो दोबारा वापस ज़मीन पर आ जाते हैं. यानी जो पानी नीचे से ऊपर जाता है इट इज़ कॉल्ड अ साइकिल ना, कि वो ही चीज़ जो बना रही है और उसको वहाँ पे प्रोसेस कर रही है, फॉरवर्ड कर रही है, वो वापस बारिश की शक्ल में नीचे उन्हीं लेक्स में, उन्हीं रिवर्स में वापस आ जाता है. तो ये जो साइकिल है वो चलता रहता है, रुकता नहीं है. राइट. So you need to come on page number 56 now. Here we go. यहाँ आप देखें it's discover more. हमें बारिश के बारे में मज़ीद जो है वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो देखते हैं कि वो क्या है. Besides rain, water droplets can fall back to the earth's surface as hail or snow. Snow is formed when water vapor changes into tiny ice crystals at temperatures below freezing point. These tiny ice crystals stick together to form snowflakes and fall as snow. Hailstones are pieces of frozen water droplets that can be as small as a pea to as large as a soft ball. However, when falling from the sky at such high speed, hailstones can pose a dangerous threat to humans and property. Beside hail and snow, water droplets can fall to the earth's surface in other forms. What do you think these forms are? Do an internet search to find out. ठीक है कि वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं और फ्रीज़ होने के बाद बारिश की सूरत में नीचे गिरते हैं, जिसको हम हेल स्टोन्स कहते हैं. उसका साइज़ आपको बताया गया है कि उसका साइज़ एक स्मॉल पी के जितना भी हो सकता है और एक सॉफ्ट बॉल के जितना भी हो सकता है, जो कि जब वो नीचे ज़मीन पे आता है तो नुकसान पहुंचा सकता है. द नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर, कि हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए वाटर को. वाटर कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द अर्थ's surface. However, only
3% makes up fresh water. Most of it is trapped in blocks of ice and glaciers, leaving only about 1% that can be used. Fresh water is thus very scarce and precious. We should use our limited supply of fresh water very carefully and avoid wasting it. This is known as water conservation. Think of all the ways in which you use water in a day. What can you do to conserve water? कि उसको किस तरह से आप सेव कर सकते हो, वेस्ट नहीं कर सकते हो वाटर को, वो आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. मोस्टली हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पानी जितने हमें ज़रूरत है, जितना इस्तेमाल के लिए चाहिए, उतना ही हम उस पानी को टैब में से निकालें. पानी को ज़ाया मत करें. इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता है कि ये इट्स अ गुड डीड कि हम पानी को ज़ाया नहीं करें, राइट. इसी पेज के ऊपर आप देखो अमेजिंग फैक्ट्स हैं हेयर. Water is a very important component in the human body. About 70% of an adult's body is made up of water. आपको पता है कि हमारी बॉडी में 70% water है. Important functions of the body such as digestion and blood circulation require water. A person can survive about 30 days without food but less than a week without water. यानी खाना खाए बगैर तो वो 30 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी पिए बगैर वो एक हफ्ता भी ज़िंदा नहीं रह सकता. सो उसको अपनी बॉडी की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज 70% ऑफ द बॉडी इज़ हैविंग वाटर. ठीक है. नाउ वी नीड टू गो ऑन पेज नंबर 57. लुक एट दिस पेज. यहाँ पे हमें कुछ बताया गया है कि डू नॉट, हमें ये नहीं करना चाहिए. डू नॉट लीव द टैप ऑन when brushing your teeth. Do not fill the bathtub. For each bath take a shower instead. यानी bathtub को fill up करने के लिए, अगर हम नहाने के लिए जा रहे हैं तो bathtub को fill up करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है. तो it's better कि हम लोग bathtub की बजाय हर दफ़ा, लेट सपोज आप समर में लेते हो, बाथ लेते हो तो 2 times 3 times आप लेते हो, तो इट्स बेटर कि आप बाथ टब को करने की बजाय यूज़ आप जो है वो शावर यूज़ करें. कि बाथ टब को यूज़ करने की बजाय, क्योंकि बाथ टब में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है और वो ऑब्वियसली वेस्ट हो जाता है, दोबारा किसी इस्तेमाल में नहीं आता. तो आप शावर यूज़ करें. एंड देन हम समटाइम क्या करते हैं कि जब टीथ ब्रश करते हैं तो टैप को खुला ही छोड़ देते हैं, हालांकि वो पानी यूज़ नहीं हो रहा होता, तो वो वेस्ट हो रहा होता है. ठीक है. साफ़ पानी होता है तो उसको हम वेस्ट कर रहे होते हैं. तो जब आप अपने टीथ ब्रश कर रहे हैं तो टैप को बंद कर दें ताकि पानी वेस्ट नहीं हो. डिस्कवर मोर. हियर वी गो. फ्रेश वाटर इज़ वाइटल फॉर आवर सर्वाइवल. वाइटल मीन इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली. द रैपिड इंक्रीज इन द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज़ फोर्स्ड मैनकाइंड टू डेवलप न्यू टेक्निक्स टू ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर. ऑब्वियसली जैसे जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, उसी तरह से हमें खाने और पीने के लिए चीज़ें भी ज़्यादा चाहिए. तो अब वो नई टेक्निक्स जो है उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं सो दैट दे कुड गेट मोर फ्रेश वाटर. दिस इज़ बिकॉज फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट एबल टू मीट ग्रोइंग डिमांड्स. Desalination is one of the methods used to extract fresh water from seawater. Find out more about desalination and its process by visiting this link. ये आपको लिंक यहाँ पे शो किया गया है, इंटरनेट लिंक है 3.1. यहाँ आप करो इसको, लिंक को क्लिक करो, तो then you will find out कि how we can get fresh water through this process. I hope you people understood whatever we read in this chapter. If still you are confused or you are not getting anything, you please do let me know. I can explain you the things again. That is the last chapter I guess of your midterm.
तो कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बहुत कंफर्टेबली, बहुत आराम से इस चैप्टर को पढ़ें और उसके बाद मुझे बताएं। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग देन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। आप मुझे बताओगे, देन आई विल बी सेंडिंग यू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, टेक केयर, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।